ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಶವೇ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೂರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರ. ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ದೇಶ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಳಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಾವು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಜರಂಗ್ ಮುನಿಜಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ಜಿಯವರು 2015 ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ಜಿಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕೆ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಾಜೀವ್ ಭಾಯಿ के जो विचार थे उस विचार को कैसा हम आगे लेके जाने के लिए हम सब बैठे हैं. उसके ರಾಜು ಭಾಯಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್. आपको कल दोनों ही चलेगा, कैसा भी ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। मैं अनिल बोकिल, और जब मैंने अभी शिवानंद जी को कन्नड़ा में बात करने सुना तो मैंने उनको पहले दिन बोला कि इतनी अच्छी भाषा है आपकी और मैं ये बोल नहीं सकता. आप थोड़ा सा हिंदी जितना हो सके उतना समझ लीजिए. आता है, समझिएगा? अच्छा हो गया. नहीं तो मैं फिर शिवानंद जी को तो रिक्वेस्ट करूंगा ही कि इसमें थोड़ा कन्नड़ में जो भी है उसको मैं थोड़ा सा राजू जी से इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि राजू जी के पोस्ट जो पीरियड था, हम 2-3 जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे बात किए थे. तो हैदराबाद में तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पॉलिटिकल लीडर में थे और एक बड़े गेस्ट हाउस में, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का एक गेस्ट हाउस था, और मैं और राजू दीक्षित 2 दिन एक ही साथ रहे, एक ही रूम में. और तब ये बात हुई थी, वो स्वदेशी की बात कर रहे थे और वो बहुत अंदर से, वो तो मेधावी थे, बात करने का ढंग, वो भाषा सब अलग ही था, वो दैवी था. मैंने उनसे एक बात की थी कि मैं आपको एक कदम यहाँ चलता हूँ, लेकिन एक कदम मैं आपसे और आगे निकलता हूँ.
तो उनको गुस्सा आ गया। वो बोले क्या है? मैं बोला आप जो स्वदेशी की बात करते हैं, हम बात वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं। तो उनका थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। अगर स्वदेशी नहीं तो कुटुंब कहाँ बनेंगे जब आपका घर ही नहीं है? तो मैंने कि वसुधा यही हमारा घर है, और ये भारत की फिलॉसफी है। आपकी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, आपका सिविलाइजेशन ये अलग बात है, आपका कल्चर ये भी अलग बात है, लेकिन ह्यूमैनिटी की जो बात है, वसुधैव कुटुंबकम, हम 800 करोड़ की बात करेंगे। तब मैं बात कर रहा था तो 680 करोड़ कुछ तो पॉपुलेशन थी दुनिया की। मैं 680 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा मैंने तब बोला था। बहुत साल हो गए, 14-15 साल। फिर वो एक बार औरंगाबाद में आ गए, फिर एक ही इसमें हमारे दोनों का भी एक डिलीवरी था। उन्होंने इतनी अच्छी बात की, इतनी बात की, वो खून जलता था उनका अंदर से। तो होने के बाद मैंने रुक दिया, मैं बोला कि मैं बोलूँगा नहीं, और मैंने बोला राजू मेरे साथ अभी आपको चलना है। बोले कहाँ चलना है? मैंने बोला कि बैठ गाड़ी में। और मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा अरे तुझे बात मैं कभी नहीं करता, लेकिन वो छोटे थे मुझसे। मैंने उनको बोला मेरे साथ गाड़ी में लेके मैं एक होटल में गया। मैं बोले पहले खाना खाना है आपको पूरा, आपका इतना इरोजन हो गया है, 1 घंटा आप जिस अंदर से बात कर रहे थे टूट के, ये आपका सिर्फ दिमाग नहीं, आपका खून भी इसके साथ चला है। उनके आँख में आंसू आ गए, छोटे भाई जैसे। तो बात आगे निकलती रही, तो भारत गरीब कैसे हुआ, फिर ये सभी बातें तो थी। फिर ब्रिटिश क्या, सिविलाइजेशन के अलग अलग डायमेंशन एक्सप्लोर होते रहे। तो हमने तो ये बोला था कि ये सिविलाइजेशन के फेजेस होते हैं, इवोल्यूशन में भारत में भी आके गया, सब कुछ हुआ। हम अतीत में नहीं जा सकते। आज मैं कितना भी सोचूं तो मैं अभी 50 साल का हो नहीं सकता, अभी होगा तो 75 साल का ही होगा। भविष्य में आदमी जा सकता है, अतीत में तो जा ही नहीं सकता। जो हो गया पास्ट इज पास्ट, हमारे लिए फ्यूचर खड़ा है, आने वाले सब के लिए फ्यूचर, हमें फ्यूचर में पैर रखना है। अगर हम आज ये बात करेंगे कि स्वदेशी से ही चलेगा, स्वदेशी से भी चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन आज जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है पूरा टेक्नोलॉजी की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, आप तो सभी नई जनरेशन तो अभी एजुकेशन हो गया, सिविलाइजेशन, कल्चर सभी एक दूसरे में इतना मिक्स हो गया, हमें मालूम नहीं कि मेरी बहू कहाँ से आने वाली है, वो चाइनीज़ है या जापानीज़ है। दोनों ही बच्चे का ही तो पढ़ रहे हैं यूरोप में, अभी है ऐसा है। वो भी ये सभी टर्बुलेंस अब दुनिया में चल रहा है। हर कोई अभी सर्वाइवल की बात सोच रहा है कि आगे वाला कल हमारा कैसा आएगा। क्या हम पूरा दुनिया को 140 करोड़ का सिविलाइजेशन में बांध सकते हैं? दिल से बांध तो सकते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं बांध सकते। हम लोग बेसिकली सिविलाइजेशन के इसमें हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन से निकल के आए हैं। जियोग्राफी का जो एरिया है भारत का वो स्पेसिफिक है। ये नेचर फेवर्ड एक हमारा लोकेशन है जहाँ मौसम पूरा बैलेंस्ड है। 4 महीने की बारिश, 4 महीने की धूप, 4 महीने की ठंड। इतना अच्छा मौसम दुनिया में नहीं है। थोड़ा साउथ अफ्रीका में और थोड़ा सा इसमें है अमेरिका में, थोड़ा सा साउथ अमेरिका में। तो नेचुरल इसमें हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया जो सिर्फ नेचर दे सकता है। एक दाना बोए तो 100 दाना नेचर देता है। आदमी को ये प्रोसेस कभी हासिल हो ही नहीं सकती। एक इनपुट को एक आउटपुट आदमी ले ही नहीं सकता। लेकिन मदर नेचर ने हमें एक फेवर किया जिसमें फोटोसिंथेसिस, ये जो सूर्य प्रकाश जो है, 9 महीने अबंडेंस। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, तो भारतवर्ष का ये पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसमें बायोडाइवर्सिटी और अमाप ऐसा कृषि उत्पाद हो गया। वनस्पतियाँ अलग अलग, इसमें पेड़ पौधे, इसके लिए पशु पंछी, अबंडेंस, यहाँ का सब कुछ अबंडेंस, बहती नदियाँ, बहते पानी। इसलिए आदमी को बाहर किसी को झगड़ा करना ही था नहीं, सर्वाइवल के लिए इतना अबंडेंस था, झगड़ा था ही नहीं। जब आदमी के पास अबंडेंस होता है तो आदमी का दिल बड़ा होता है,
प्रोड्यूस तो करना नहीं है जितना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा करें, क्योंकि नया जो अनाज आएगा वो रखने के लिए पहले वाले जो गोडाउन है वो तो खाली करने पड़ेंगे ना। इतना दूध है, इतना जानवर है इसमें कि पहला दूध नहीं निकलेगा तो दूसरे दिन का दूध रखेंगे कहाँ। हमारे यहाँ कभी प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लोग थे, एक दाने को 100 दाना ऊपर वाला देता था। तो हमारी इकोनॉमिक्स जो सोच थी सिविलाइजेशन की और हमारी पूरी संस्कृति की सोच ये दिल वाली हो गई, दिमाग वाली नहीं, क्योंकि दिमाग की जरूरत ही नहीं थी, तो कंपटीशन किसी के साथ थी ही नहीं, जो भी था वो अंदर प्रवास था। तो हमारे यहाँ फिलॉसफी की डेवलपमेंट हो गई, बाहर नहीं। हमारी सोच यहाँ तक हो गई कि एक जिंदगी के बाद की जिंदगी कैसे रहेगी, रिकारनेशन, रीबर्थ, 7 बर्थ, 10 बर्थ, कर्मा की थ्योरी कि हमारी जो आगे की आएगी वो कैसी रहेगी, वो कर्मा थ्योरी कैसी रहेगी। हम बाहर से किसी से लड़ाई की बात ही नहीं थी, क्योंकि इतना अबंडेंस था। ये हमारा था एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति। इसी समय और 2 संस्कृतियां डेवलप हो रही थी दुनिया में। दूसरी यूरोप में थी, वहां धूप थी ही नहीं, 9 महीने तो वहां सूरज उगता ही नहीं, ठंड। जब सूरज ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, तो खेती नहीं, तो फिर वहां क्या था, बायोडाइवर्सिटी नहीं, नेचर के साथ लड़ाई करना, झगड़ा, खाने के लिए भी हंटर और गैदरर, नॉनवेज ही खाना, जानवर, क्योंकि पेड़ पौधे थे ही नहीं। तो आदमी का दिमाग जो था वो तेज हो गया, क्योंकि वो कंपटीशन नेचर के साथ करनी थी। तो वहाँ का आदमी कॉम्पिटेंट बन गया, दिमागी हो गया। इसका दिमाग बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। भारत का दिल बड़ा हो गया, दिमाग की जरूरत नहीं थी, इसलिए दिमाग को छोड़ दिया। ये दूसरा सिविलाइजेशन था। और तीसरा था मिडल ईस्ट का, जिसको हम डेजर्ट कल्चर कहते हैं। वहाँ तो ना ये था, ठंड नहीं थी, ना कड़ी धूप, सिर्फ धूप, रेगिस्तान। वहाँ नेचर के साथ लड़ाई करना तो फिजिकली स्ट्रांग रहना है पहले। यूरोप ये एनर्जी के पीछे, क्योंकि एनर्जी के सिवाय इतने ठंड में अगर आपको एनर्जी नहीं तो आप जम के ही मर जाओगे। तो एनर्जी के ढूंढते ढूंढते उनकी सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। हमारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन देते देते डेवलप हो गई। अब मैं आपको कुछ फिगर बताता हूँ। ईस्वी सन 1, आज से 2023 साल पहले, 2023 साल पहले पूरी पृथ्वी की जो पॉपुलेशन थी, पूरी पृथ्वी की, वो थी 20 करोड़। पूरी दुनिया की 20 करोड़। ईस्वी सन 1000 साल में पहले ग्लोबल पॉपुलेशन, पूर्ण पृथ्वी की पॉपुलेशन हो गई 20 करोड़ 80 लाख। 1000 साल में 80 लाख लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। 20 करोड़ 80 लाख। उसके बाद के 800 साल, 1823 में पृथ्वी की लोक संख्या हो गई 100 करोड़। करीबन 80 करोड़ लोग बढ़ गए। उसके बाद के 100 साल, 1920, पृथ्वी की लोक संख्या हो गई 200 करोड़। दूसरे 100 करोड़ साल में 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी। आज है 2023 और 100 साल, आज पृथ्वी की लोक संख्या 800 करोड़, 6 गुना आ जाए। यह फर्टिलिटी कहाँ से आई? यहाँ का वेदर इतना अच्छा था कि यहाँ फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी का अबंडेंस, इसलिए पॉपुलेशन भी यही बढ़ती गई। आज भी दुनिया की, एशिया की जो पॉपुलेशन है 800 करोड़ में, 475 करोड़ सिर्फ एशिया में है। चाइना, इंडोनेशिया और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जोड़ दिए हो गए सब। पूरी अफ्रीका की पॉपुलेशन 150 करोड़। पूरा यूरोप की आज की पॉपुलेशन 75 करोड़। और पूरा अमेरिका, साउथ और नॉर्थ, कनाडा से लेके पेरू तक नीचे, पूरी पॉपुलेशन 103 करोड़। हम लोग अबंडेंस वाले हैं। ये दिल वाले लोग हैं, दिमाग वाले नहीं।
हम लोग दिल की बात करते हैं, दिमाग के नहीं। हम लोग समझने वाले लोग हैं, हम सोचने वाले लोग नहीं हैं। हम बोलते हैं ना, अरे जरा सोच समझ के बात की। हम बोलते भैया हम सोचना तो हमारा काम ही नहीं, दिमाग नहीं है ना, दिल है, समझता है। बोल क्या समझता है? तो हम लोगों के अंदर का प्रवास इतना बड़ा हो गया, हर पत्थर में, हर पेड़ में हमें भगवान दिखाई देने लगा, क्योंकि वो स्पिरिट था। यह हमारी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट थी, डेवलपमेंट थी। अभी यहाँ भारत की फिलॉसफी में 4 डायमेंशन दे दिए गए, धर्म, अर्थ, कर्म। काम नहीं, काम कर्म के 2 होते हैं, उपभोग और भोग। उपभोग को काम बोलते हैं, और काम भोगने का जो फल होता है वो भोग भोगने पड़ते हैं। बहुत मीठा खाया, बहुत तीखा खाया, अभी भोग है भैया, भोग रहा हूँ। सीवियर डायबिटीज हो गया है सब कुछ, क्योंकि मैंने पहले जो किया है इसका कर्म फल ये है। और चौथा है मोक्ष। हमारी लाइफ का अल्टीमेट है सैटिस्फैक्शन, नॉट कंफर्ट। हम सुख के लिए भारतीय आदमी कभी जिया ही नहीं, वो जिया सैटिस्फैक्शन, समाधान, इटर्नल सैटिस्फैक्शन, दैट्स द मोक्ष। यह हमारे 4 जो डायमेंशन थे, उसमें जीविका और उपजीविका, ये 2 डायमेंशन होते लाइफ के, आदमी के। जीविका का मतलब मेन स्ट्रीम लाइफ, मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है, ये जीविका है, ये स्पिरिचुअल है। और उपजीविका, ये मुझे मिल गया देह, ये बर्थ में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा सेटिस्फैक्शन होगा, ये उपजीविका। अभी इसमें 4 टियर आ गए, उसमें आ गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म ये कैरेक्टर पे काम करता है अंदर, इसलिए हर एक का धर्म अलग। कोई 2 आदमी का धर्म एक नहीं, बाप का धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग। बाप बेटे जैसा बर्ताव नहीं कर सकता, बेटे बाप जैसा नहीं कर सकता, दोनों का धर्म अलग। अगर मैं पति हूँ तो मेरा धर्म अलग, मैं भाई हूँ तो मेरा धर्म अलग, मैं अगर किसी का बेटा हूँ तो मेरा धर्म अलग। माँ से मैं पति जैसा नहीं बर्ताव कर सकता, धर्म अलग, कैरेक्टरल चेंज है, मेरा मैनिफेस्टेशन बदल जाता है। अभी अर्थशास्त्र जिस पे हम काम करते हैं लोग, दुर्भाग्य से हमारे देश में पैसे के शास्त्रों को ही अर्थशास्त्र समझते हैं। पैसे का अर्थशास्त्र से कोई ये नहीं है। अर्थशास्त्र ये संसाधनों का शास्त्र है। पैसे के शास्त्र को वित्त शास्त्र या फाइनेंस बोलते हैं, नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ टोटली डिफरेंट, इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। जो मदर नेचर बनाती है उसको सबको सोर्स बोलते हैं। साइंस ऑफ सोर्स इज इकोलॉजी, पर्यावरण। नेचर ने जो बनाया वो सब पर्यावरण। नेचर ने पशु बनाए, पंछी बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, नदियाँ बनाई, ये सभी पर्यावरण, ये सोर्स है। आदमी वो सोर्स को लेता है और सिर्फ आदमी के यूज के लिए उसके ऊपर प्रोसेस करके आदमी के ऊपर जो बनाता है वो रिसोर्स, सोर्स को प्रोसेस करके रिसोर्स बनाता है। उसका साइंस जो होता है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कच्चा चावल होता है, पानी होती है, आग है, ये तीनों मदर नेचर ने बनाए, ये इकोलॉजी है। लेकिन पका हुआ चावल ये रिसोर्स आदमी ने बनाया। पका हुआ चावल नेचर बना के नहीं देता, बर्तन में डालना पड़ेगा, चावल डालने पानी लगेगा, उसके ऊपर आपको आँच देनी पड़ेगी, ये इकोनॉमिक्स। पका हुआ चावल इकोनॉमिक्स, कच्चा चावल इकोलॉजी। जब ये चावल मैं बेचता हूँ खाने ट्रेड में और उसके बदले में मैं 20 रुपये 25 रुपये जो लेता हूँ कागज का टुकड़ा, वो फाइनेंस। ट्रेड किया तो, एक्सचेंज किया तो नहीं। आपको भूख लगी है, आपके पास कपड़ा है, मुझे कपड़ा दे दो, आपके भूख के लिए खाना दे रहा हूँ, ये वैल्यू का एक्सचेंज हो गया, ये ट्रेड नहीं है। भारत में बार्टर ट्रेड नहीं था, बार्टर एक्सचेंज था। वैल्यू के बदले में वैल्यू थी, उसमें कोई मीडियम नहीं था। कागज का टुकड़ा, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर ऑफ सम रुपीज, ऐसा कुछ था ही नहीं।
अभी ताज्जुब की बात यह है, जो नोटबंदी के इसमें हमसे बात हो गई थी, यह कागज का टुकड़ा कैसा बनता है यह मालूम नहीं है हमारे देश में। कोई भी सीए को आप पूछो, कोई बड़े इकोनॉमिस्ट को आप पूछो कि ये कागज का टुकड़ा आखिर प्रिंट कैसे होता है, ये पेड़ को तो लगता नहीं, खदान से निकलता नहीं, आदमी बनाता है ना उसको। तो कितना भी क्यों नहीं बनाता, हर आदमी आप पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के सिवा तो दुनिया नहीं चल रही है, तो प्रिंट क्यों नहीं करता है? क्या नहीं है? प्रिंटिंग मशीन नहीं है, कागज नहीं, डेलारो कंपनी तो बैठी है कागज बनाने के लिए। और ऐसा कैसे बना सकते हैं? और क्यों नहीं बना सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरकार के पास सोना होता है, फिर वो सोना सरकार लेती है, फिर वो रिजर्व बैंक में रखती है, फिर उतने वैल्यू का ही नोट प्रिंट होता है। बोला मैंने आपको, किसने कहा ये भारत में 1954 को खत्म हो गई सिस्टम, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे, या मेटल बैकअप, मेटल स्टैंडर्ड। 54 70 साल से ज़्यादा हो गए। ये कागज का टुकड़ा ऐसा कुछ नहीं बनता है, इसके पीछे कुछ नहीं है। 1954 में पहली बार जब हमारा सोने से डिस्कनेक्ट हो गया कागज का टुकड़ा, तब की गवर्नमेंट ने 1954 की 200 करोड़ रुपया तब के रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखे थे। उसमें 115 करोड़ का सोना था और 85 करोड़ की पाउंड करेंसी थी यूके की। और वो 200 करोड़ पे आज कितना करेंसी नोट है मालूम है आपको सर्कुलेशन में? 36 लाख करोड़। उसके पीछे कितना है बैकअप? ये जो कागज का टुकड़ा बनता है जिस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बेयरर ऑफ सम रुपीज 500, आज की जो नोट है उसका पूरा प्रिंटिंग का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आज की ₹2.60 इतना है। यानी 500 का जो टुकड़ा अपने जेब में है उसकी रियल वैल्यू ₹2.60, उसके ऊपर एंडोर्स वैल्यू जो है वो ₹500 है। अब मुझे बताइए कि ये ₹500 में एक जीरो और बढ़ाना है सरकार को, तो सरकार का कितना खर्चा बढ़ेगा? एक जीरो और प्रिंट करना है भैया, कितना बढ़ेगा? 5,000 रुपए की वैल्यू, यानी एक्सचेंज वैल्यू तैयार होगी, इंट्रिंसिक नहीं। हवा में से कुछ निकलता है क्या? फिजिक्स का ऐसा नियम है। फिजिक्स का बेसिक जो नियम है मटेरियल का, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन चेंज द फॉर्म। आप क्रिएट कुछ कर नहीं सकते, कोई चीज आप खत्म नहीं कर सकते, आप फॉर्म। तो आप ये जीरो बढ़ा के कुछ इसमें नहीं, आप ये शॉकिंग नहीं लगता आपको? ये कागज का टुकड़ा, हाँ? और ये कागज के टुकड़े हम सबकी जिंदगी बदल दी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बच्चे गांव छोड़ के जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए शहरों में, शहर छोड़ के जा रहे हैं परदेश में पैसा कमाना है। क्यों भैया, क्यों जा रहा है? ये कागज का टुकड़ा। दुनिया की आज की सबसे हेवी करेंसी जो है उसका नाम है डॉलर। हम सब जानते हैं $100 सबसे बड़ी नोट है। अब सबको मालूम है ये $100 की प्रिंटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है? 20 सेंट, यानी उनकी ₹100 की नोट उनके 20 पैसे में बनती है। उसके पीछे सोना बिना कुछ नहीं है। 71 में डिस्कनेक्ट किया था निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अभी जो किसिंजर गए ना 3 महीने पहले, उन्होंने सब डिस्कनेक्ट किया। ये सोना जब था तो वो इकोलॉजी था, सोना तो नेचर ने बनाया था, और ये कागज का टुकड़ा उसके साथ लिंक था, यानी इकोनॉमी और वो इकोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, डिपेंडेंट थी। जब सोने से डिस्कनेक्ट हो गया तो इकोनॉमी अलग हो गई और इकोलॉजी अलग हो गई। अभी ये सिर्फ आदमी की सोच पे चल रहा है, नेचर के अंडर कुछ भी नहीं है। इसीलिए अभी ये सभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मदर नेचर का कंट्रोल ही नहीं है। पहले सोने में से पैसा बनता था, अब पैसे में से सोना बन रहा है। 60,000 रुपये दे दो 1 तोला सोना हो जाएगा। अभी कुछ दिन में 6 लाख रुपए दे दो 1 तोला मिल जाएगा। इक्वेशन उल्टा हो गया। हमारी ये गलती हो गई कि हमने जो
एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो मार्क्स होती क्या चीज है? क्या है मार्क्स? क्या है? आपके अंडरस्टैंडिंग कितना हो गए ये समझने का यूनिट है। ऐसा नहीं कि मुझे 100 मार्क मिले इसका मतलब मुझे सब कुछ आ गया। अरे मेरे तो सब्जी समझ में नहीं आती, ये क्या और ये क्या, लेकिन मार्क तो 100 में से 100 में है। ऐसे ये कागज का टुकड़ा वैल्यू नहीं है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इट्स नॉट अ वैल्यू। ये मूल्य नहीं है। मार्क्स ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का एक यूनिट है काउंट करने का। ट्यूशन लगा के कॉपी करके 100 में से 100 मार्क ले लिया, ज्ञान तो 0। और ये कागज के टुकड़े ने सब बदल दिया। इसको अर्थशास्त्र कहने लगे, पूरी दुनिया इसी को अर्थ समझने लगी। आज मैं आपके सामने ये कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये करेंसी नोट क्यों बंद हो गई है अगर आप बताने जाएंगे तो आपको 8-10 घंटे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे इसलिए दे थी क्या? ये मिथ। अर्थशास्त्र के 2 डायमेंशन मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। इसका एक डायमेंशन जो होता है, जो व्यक्ति के पास जाता है, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उसको स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ, सेल्फिश इंटरेस्ट। और दूसरा डायमेंशन है जो ह्यूमैनिटी की तरफ जाता है, मानवता की तरफ, उसको परमार्थ कहते हैं। परम अर्थ। दुर्भाग्य से हमारे इसमें परमार्थ अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है। यार भैया ये परमार्थ की बात कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स, मेटा इकोनॉमिक्स होता है, उसको परमार्थ बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्वार्थ बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको स्थूल अर्थशास्त्र बोलते हैं, वो अर्थशास्त्र होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। व्यक्ति की तरफ जाता है वो स्वार्थ, मानवता की तरफ जाता है वो परमार्थ। परमार्थ में स्वार्थ होता ही है, सबका स्वार्थ जिसमें है वो परमार्थ। किसी ने स्वार्थ छोड़ना नहीं, किसी ने स्वार्थ छोड़ा तो वो सन्यासी हो गया, अर्थशास्त्र से उसका संबंध खत्म, मटेरियल वर्ल्ड से संबंध नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। दुर्भाग्य से हम लोग परमार्थ की बात करने लगे तो उसको अर्थशास्त्र ने मटेरियल वर्ल्ड से निकालते। भैया सन्यासी को भगवे कपड़े डालो, अभी आप तो सन्यासी है, महाराज हो गए। परमार्थ यानी मेटा इकोनॉमिक्स, जिसमें 800 करोड़ का स्वार्थ समाया है। एक का भी स्वार्थ अगर उसमें नहीं है तो वो परमार्थ हो नहीं सकता। आपका भी होना चाहिए और मेरा भी उसमें स्वार्थ होना चाहिए, इनका भी। तो भारत एक देश है जिसके आरएनए डीएनए में परमार्थ ये शब्द हम सबको मालूम है। दुर्भाग्य से हमने उसको अध्यात्म के साथ जोड़ दिया, ये मेटा इकोनॉमिक्स। अब दूसरी चीज, ये कैसे जुड़ी इसके साथ? परमार्थ क्या है? हमारी आज की दुनिया जन्म के साथ जुड़ी है। अनिल वकील अनिल हो गया, ये अब्दुल हो नहीं सकता था क्या? अनिल वकील होने के लिए कोई कैपिटेशन की मैंने तो नहीं दी थी मेरे माँ बाप को, या कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी थी। आपने दी थे क्या? किसने? ये घर में जन्म लेना है मुझे कि मैं ये परीक्षा देके ये घर में जन्मा हूं, आपने दी थी? कोई कैपिटेशन दिया था? कौन से चॉइस से आया हमें घर में? जन्म किसके हाथ में था? यहां बाय चॉइस ये जन्म में आना किसके था? ये किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन आज के पूरे इकोनॉमिक्स वर्ल्ड का बेस हो गया वो जन्म। मैं भारतीय हूं क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया। अगर मैं अमेरिका में होता तो मैं अमेरिकन हो जाता, मेरे इंटरेस्ट ही बदल जाते। अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मुझे पाकिस्तान मेरा अलग था, चाइनीज होता तो चाइनीज, अगर मैं ल्यूसी बनता तो जेंडर ही बदल जाता। हमारे देश में आज जो जात धर्म की लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया में अलग अलग डायमेंशन पे चल रही है, और इसका एक ही अगला रास्ता है, एक ही सॉल्यूशन है, इसके ऊपर दूसरा सॉल्यूशन नहीं। यह है परमार्थ, मेटा इकोनॉमिक्स, जिसमें सबका स्वार्थ समाया जाए।
ना उसमें स्त्री पुरुष, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, अमेरिकन, चाइनीज, कोई नहीं। मानव है क्या? राजू दीक्षित जो बात करते थे राष्ट्रवाद, स्वदेशी, कि मेरा राष्ट्र ही मेरा है, मेरा सिविलाइजेशन, मेरा कल्चर ही मेरा है, मैं उनको बोलता था कि एक कदम और आगे चलेंगे, मानवतावाद की तरफ जाएंगे। तो उनको लगता था ये सोशलिस्ट बात हो रही है, समाजवाद, ये अलग है। जो सिर्फ समाज की बात करेगा, जो स्वार्थ की बात नहीं करेगा, दैट इज सोशलिज्म। जिसमें स्वार्थ नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, कभी वो टिक ही नहीं सकता। और जिसमें सिर्फ स्वार्थ की बात है वो कैपिटलिज्म, उसमें समाज की बात ही नहीं। हम सब लोग 4 टियर पे जीते हैं, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। व्यक्ति होती है स्वार्थ, अनिल बोकिल के लिए अल्टीमेट होता है स्वार्थ। समष्टि के लिए जो अल्टीमेट होता है वो परमार्थ, जिसपे हम सबका स्वार्थ हो। सृष्टि के लिए होता है वो स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी। और परमेष्टि के लिए जो होता है, जो हम समझते हैं, वो डिवाइन कैनवास है। वो मटीरियल और स्पिरिट के आगे के डायमेंशन है। वो अंडरस्टैंड की बात नहीं, वो रियलाइजेशन, हर एक का अपना अंदर ढूंढना, उसको बाहर नहीं। तो परमार्थ आज दुनिया को बचा सकता है सिर्फ मेटा इकोनॉमिक्स, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं। और मेटा इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही टूल है जो हम सबके पास है, एक ही टूल, दूसरा टूल भी नहीं है। हम सब कुछ समाज से लेते हैं, सैलरी समाज से लेते हैं, कमीशन समाज से लेते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, सब समाज हमें देता है। कमीशन हो या प्रॉफिट हो या रेंट हो या इंटरेस्ट हो या सैलरी हो, समाज को सिर्फ हम एक चीज देते हैं, वो है टैक्स। आदमी से समाज की तरफ जाता है सिर्फ टैक्स, वही परमार्थ का एक ही रास्ता है। दूसरे 2 रास्ते एक इस्लाम में कहा गया है ज़कात, वो इतना बड़ा रास्ता है। जैसे सनातन में उसको दान कहा है। दान, दान का मतलब डोनेशन नहीं, दान का मतलब कंट्रीब्यूशन, कि मैं इसको दे रहा हूँ, कि मैं कंट्रीब्यूट, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो दुर्भाग्य से टैक्स के ऊपर इतनी कम बात होती है। और परमार्थ का एक ही रास्ता है, इसके तो दूसरा रास्ता ही नहीं, जो आदमी से समाज की तरफ जाता है, व्यष्टि से समष्टि की तरफ। बाकी तो सभी समष्टि से व्यक्ति की तरफ आता है। तो चलते वक्त मैं सिर्फ परमार्थ का एक ओपन करके जाऊंगा। आप मुझे इसमें से बताइए कि एक प्रपोजल, क्योंकि आप यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। यह परमार्थ की हमने बात की है, जहाँ दुनिया से युद्ध खत्म हो जाएगा, दुनिया पूरी इस्लाम या बुद्ध की तरफ जाएगी। इस्लाम का मतलब ये नहीं आज के रिचुअल्स, इस्लाम का मतलब शांति, चिरंतन शांति, दरुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। सनातन की वो बात कर रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की। मैं बुद्ध की वो बात कर रहा हूं कि चिरंतन मोक्ष, निर्वाण, एक ही चीज वहां आती है। यह इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा। सबको लगेगा कि मेरा स्वार्थ है इसमें, हर एक की स्वार्थ की मैं बात कर रहा हूँ। और यही हमारा प्रपोजल है जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। 60 साल के ऊपर के हर आदमी ये नेशनल असेट होगा। 60 साल के ऊपर का कोई जेंडर नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, 140 करोड़ कंप्लीट नेशनल असेट, देश की संपत्ति रहेगी। ये संपत्ति कैसी रहेगी? हर एक को सम्मान के साथ गुड बाय करने के लिए, सम्मान के साथ ऑनरेरियम रहेगा। मिनिमम 10,000 रुपया आज के हिसाब से पर मंथ उसको ऑनरेरियम रहेगा। और वो डीए लिंक रहेगा। जब आप हमारी उम्र में आएगा तो 45,000 आपके लिए मिलेगा, तब की जो महंगाई रहेगी। यह आपका हक की मैं बात कर रहा हूँ, भीख नहीं। रास्ते का एक भिखारी हो या मुकेश अंबानी हो, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। भिखारी ने अगर बिस्किट का पूरा ले लिया तो जीएसटी दिया नहीं दिया उसने? अगर रिक्शा में बैठा तो उन्होंने पेट्रोल का टैक्स दिया नहीं दिया? अगर उन्होंने किसी ने फोन लगाया तो उसने उसके ऊपर जीएसटी दिया है नहीं दिया? 60 साल तक देश की इकोनॉमी को उसने कंट्रीब्यूट किया है। और 60 साल तक उसने अगर वोटिंग किया है
किसी भी पार्टी को, तो डेमोक्रेसी इसके ऊपर जिंदा है ना। तो दोनों ही व्हील को उन्होंने, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों व्हील को उन्होंने पावर दी है, इसलिए अभी उसका हक है, भीख नहीं है, सम्मान के साथ मिलना चाहिए। पहला, हर वरिष्ठ नागरिक, उसमें नो डिस्क्रिमिनेशन। आप भारतीय हो, 60 साल के ऊपर, आप नेशनल असेट फिनिश्ड। अब ये आपकी यहाँ की आगे की जिंदगी ये नेशनल कंसर्न है, वो आपका पर्सनल नहीं, बिकॉज यू आर नेशनल असेट। अब इसके लिए अभी 60+ नेशनल असेट, इनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर सिटीजन के लिए हॉस्पिटल्स, वहाँ मैटरनिटी होम की जरूरत नहीं है 60 साल के ऊपर, वहाँ छोटे बच्चों की दवा की नहीं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर सीनियर्स, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए रेल की अलग बोगियाँ, अलग जैसे चढ़ सकते हैं जैसे उनकी फिजिकल एबिलिटी की ना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बसेस सीनियर सिटीजन के लिए अलग, आज की टेक्नोलॉजी ये सब दे सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फुटपाथ अलग, डेडिकेटेड। नंबर 3, हर एक को एक डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी, एट्रॉसिटी के अंडर, किसी का भी इंसल्ट होगा तो नहीं चलेगा। 60 साल के ऊपर आपको कोई आपका इंसल्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको अब्यूज नहीं कर पाएगा। यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय द एट्रॉसिटी लॉ, एवरीवन अबव 60। नंबर 4, 15 लाख के रेल के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट है, 16 लाख के डिफेंस के लिए अलग बजट है, अलग मंत्रालय, कैबिनेट। 15 करोड़ लोग हैं हम सीनियर सिटीजन, हमारे लिए कमिश्नरेट नहीं है इंडिया में। हम भारत की सबसे बड़ी वोट बैंक है। 2019 में बीजेपी को जो पूरे वोट मिले थे वो 22 करोड़ 90 लाख, 15 करोड़ तो सिर्फ हम लोग हैं। हम सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं ये देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और हमारी सरकार कौन बनाएगा, कौन चलाएगा। ये हमारी ताकत है वोट बैंक की। हमें मंत्रालय अलग चाहिए। और सबसे आखिरी चीज, 60 साल तक हमारे हाथ से कोई क्राइम नहीं है, रजिस्टर्ड FIR नहीं हुआ है, साफ सुथरी जिंदगी हमने निकाली है, तो हमें पासपोर्ट वीसा नहीं लगना चाहिए। हम किसके लिए खतरा है? 60 साल तक कभी गुनाह किया ही नहीं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी नहीं एस्टेब्लिश्ड है, और अभी 60 साल के बाद में एबिलिटी नहीं है क्राइम करने की, फिजिकल एबिलिटी नहीं। आप क्या करेंगे? और हम ही अभी बुद्ध के वो एम्बेसडर है, युद्ध से बुद्ध वसुधैव कुटुंबकम। मेरे लिए कोई चाइनीज, कोई पाकिस्तानी बच्चा अलग नहीं है, मेरे पोते जैसा ही है। अभी हमारे सामने कोई शत्रु नहीं, अंदर का शत्रुत्व खत्म करना है, उसको फिर जाके मिलना है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल लाखे। चुनरी में दाग, कोरी चुनरवा आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे। वो बाप के घर फिर जाना है, इतनी गंदगी लेके क्यों जाऊं? यही मेरा भाई, यही बहन, यही भूखी है, ये क्यों हो? 140 करोड़ के लिए इतना ज़्यादा सब कुछ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन आज हमारे देश में, ये जो सोशल पिरामिड है इकोनॉमिक, टॉप के 1% लोगों के हाथ में 40% नेशनल वेल्थ है। टॉप के 1% 40%, टॉप के 10% लोगों के हाथ में 72% नेशनल वेल्थ है, 72%, और नीचे से जो 50% है उनके हाथ में 3% वेल्थ है। क्या पोलराइजेशन, ये नेचर ने नहीं किया था, ये कागज के टुकड़े ने किया है। कागज का गुलाम बनती जिंदगी चली गई। 60 साल के बाद में वो कागज के टुकड़े को आपको गुलाम बनाना चाहिए। आपके अकाउंट पे आएगा, वो मालिक बोल के आएगा, ऑनर से आएगा। यही परम अर्थ है मेटा इकोनॉमिक्स। थैंक यू।